Hello everyone. Today we are going to study a very important chapter of class 11th, that is neural control and coordination. This short video will help 11th students to finish this chapter and also to students who are preparing for NEET for their quick revision. So, the neural system in humans is basically divided into two parts: central nervous system and peripheral nervous system. Central nervous system is consisting of brain and spinal cord, while the peripheral nervous system is consisting all the nerve fibers, that is afferent nerve fibers and efferent nerve fibers. Afferent fibers are consisting all the tissues which are sending impulses to the central nervous system. Impulses मतलब signals, ठीक है? And the efferent nerve fibers are consisting the tissues which are sending impulse from central nervous system to the peripheral tissues. Now, the peripheral nervous system. This is the overview of the nervous system. Now we start studying from the peripheral nervous system. Peripheral nervous system is basically categorized into three parts. Number one, the somatic neural system, visceral nervous system. Visceral means internal, याद रखेंगे सब लोग. And the number three is autonomic neural system. Autonomic neural system से अगर शुरू करें तो autonomic शब्द अपने आप में is explaining that something is happening automatically. Automatically मतलब यहाँ autonomic nervous system is responsible for the involuntary actions. यहाँ पर we can see impulses from the CNS to the involuntary organs via smooth muscles. हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि smooth muscles are responsible for all the involuntary actions. The peripheral nervous system is responsible for the involuntary actions, we can say. The autonomic neural system of the PNS is again categorized into two parts: the sympathetic nervous system and the parasympathetic nervous system. Now, visceral या internal nervous system के जब हम बात करेंगे तो we can say it is the part of PNS and it comprises the whole entire complex of nerve fibers, ganglia, plexuses, and these all things are responsible for sending the impulses from the central nervous system to the visceral nervous system and back to the central nervous system. Then the only left part is somatic neural system. Somatic neural system के केस में impulses are transferred from central nervous system to the skeletal muscles or voluntary muscles, which means we are able to understand कि somatic neural system is responsible for the voluntary actions of our body. Then, after this, we are going to have a quick review of the structure of the neuron or the nerve cell first before we will study in detail about its parts. This is the diagram of the neuron or the nerve cell. We all know very well. इसके सारे पार्ट्स को बस एक बार जल्दी से देख लेना है. दैट इज इनिशियली वी स्टार्ट फ्रॉम द साइटोन सेल बॉडी, देन द हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स विच आर ऑलवेज ब्रांच्ड, दे आर डेंड्राइट, न्यूक्लियस इज प्रेजेंट एंड एक्सॉन हिलॉक. एक्सॉन हिलॉक इज द जंक्शन वाला पोर्शन इन बिटवीन द साइटोन एंड द एक्सॉन. द एक्सॉन इज कवर्ड विद irregular layer known as myelin sheath. In between the myelin sheath, we all know nodes of Ranvier, and cytoplasm is present within the cell body. Finally, the bulb-like structure, the terminal structure is known as nerve ending. This is all the parts of the neuron. Now, neuron or the nerve cell is microscopic. It consists cell body. Cell body consists cytoplasm, and that cytoplasm consists Nissel's granules. Dendrites are present. Axon is present. Axon terminate
finally into the synaptic knob, and that synaptic knob consists synaptic vesicles, and these synaptic vesicles release neurotransmitter. What is the meaning of neurotransmitter? ये जो nerve ending वाला portion है, they release a neurotransmitter. Neurotransmitter is a chemical जो न्यूरॉन से सीक्रेट होगा और ट्रांसमिट करेगा द वेरी सेम मैसेज इनटू द सिनेप्स, एंड फ्रॉम द सिनेप्स दैट मैसेज इज देन ट्रांसपोर्टेड टू द नेक्स्ट nerve cell. After studying the structure of the neuron or the nerve cell, we will move to the important part of this chapter, that is generation and conduction of the nerve impulses. This is an important part. Generation and conduction of the nerve impulses. When students are studying this part, they are always confused with the three terms basically, that is polarization, depolarization and repolarization. What is the meaning? तो सबसे पहले इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोग अपने दिमाग में एक रफ फिगर क्रिएट करो. देखो, द फ्लूइड विच इज प्रेजेंट आउटसाइड द एक्सोन, फ्लूइड प्रेजेंट आउटसाइड द एक्सोन मतलब अगर इस तरीके से मौजूद है एक नर्व सेल, तो दिस पार्ट इज द एक्सोन पार्ट. आउटसाइड द एक्सोन द फ्लूइड विच इज प्रेजेंट, imagine everyone, this fluid is consisting very high concentration of sodium ions and less concentration of potassium ions. Then it will create a ionic gradient. Gradient means difference. This gradient is created with the help of sodium potassium pump, which means sodium and potassium ions are continuously transported from outside to inside and from inside to outside. अब ये जो ionic gradient create होता है, during this sodium potassium pump, 3 sodium ions are transported when outwards, 2 potassium ions are transported inward. Axon outer surface is positively charged. Axon का outer surface, this surface is positively charged. Reason, sodium ions ज़्यादा है यहाँ, okay, and axon inner surface is negatively charged. Now this is known as the polarized state ऑफ न्यूरॉन, यानी रेस्टिंग स्टेट. व्हेन वी आर एट रेस्ट, तो हम सबको पोलराइज्ड या रेस्टिंग स्टेट का मतलब यहाँ क्लियर हो जाना चाहिए कि एट द टाइम ऑफ द रेस्टिंग स्टेट और द पोलराइज्ड स्टेट, आवर एक्सोन इज हैविंग पॉजिटिव चार्ज ओवर एंड इनर साइड एंड इनर चार्ज इनसाइड द सरफेस. नाउ व्हेन द इम्पल्स इज रिसीव्ड, मतलब सपोज अ पर्सन इज सिटिंग क्वाइटली एंड ऑल ऑफ अ सडन ही इज रिसीविंग इम्पल्स. वो इम्पल्स कुछ भी हो सकता है, कोई आवाज, हु इज समवन इज कॉलिंग हिम, द पर्सन विल सडनली लुक बैक. तो इम्पल्स इज रिसीव्ड. व्हेन द इम्पल्स इज रिसीव्ड, इमीडिएटली द परमिएबिलिटी ऑफ द एक्सोन, इफ दिस इज एक्सोन, इसका इस मेम्ब्रेन का परमिएबिलिटी फॉर द सोडियम आयंस विल इंक्रीज and rapid influx of sodium ions inside. Sodium ions start moving inside rapidly. Outer surface will become negatively charged now. Outer surface positively charged था जब आप रेस्ट पे थे, but now outer surface is negatively charged. Inner surface will become positively charged. The inner surface of the axon will now become positively charged. Neuron is depolarized. Neuron हो गया depolarized. तो I think मेरे जितने स्टूडेंट्स ध्यान से सुन रहे हैं, दे आर एबल टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द पोलराइज्ड एंड द डीपोलराइज्ड न्यूरॉन. आफ्टर दिस, द नेगेटिवली चार्ज्ड membrane which is present outside will send electric current from site B to site A. What is this site B to site A? अगर आप डायग्राम देखेंगे न्यूरॉन का, तो यू विल कम टू नो कि इस तरीके से न्यूरॉन के डायग्राम में द साइट ए एंड साइट बी इज मेंशनड ओवर इन योर एनसीईआरटी एज वेल. आप लोग डायग्राम देख सकते हैं एनसीईआरटी में फिगर 21.2, वहाँ पर आप देख लीजिएगा तो यू विल ईजिली अंडरस्टैंड. द नेगेटिव चार्ज मेम्ब्रेन विच इज प्रेजेंट आउटसाइड will send electric current from site B to site A. In this manner, from site B to site A, the positively charged membrane
which is present now inner side will send current from site A to site B. इसका मतलब opposite directions में ये चार्ज को फ्लो करना शुरू कर देगा. This will result in repolarization. Repolarization मतलब again the person will come back to the resting state. Repolarization के दौरान rise होगा in the permeability for the potassium ions. सोडियम आयंस का इन्फ्लक्स रुक जाएगा. जो रैपिड इन्फ्लक्स सोडियम आयंस का शुरू हुआ था फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, इट विल स्टॉप क्योंकि द पर्सन इज कमिंग बैक टू द पोलराइज्ड स्टेट, रेस्टिंग स्टेट. पोटेशियम आयंस विल फ्लो आउटवर्ड्स अगेन इन द सेम मैनर. रेस्टिंग स्टेट विल बी अचीव्ड. तो आई थिंक आप लोगों को क्लियर है द जनरेशन एंड द कंडक्शन ऑफ द नर्व इम्पल्स. तीनों शब्दों का एक क्लियर मतलब पोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन एंड अगेन कमिंग बैक टू द पोलराइज्ड स्टेट, दैट इज रीपोलराइजेशन. ओके, नाउ वी विल स्टडी अबाउट टाइप ऑफ न्यूरॉन्स. न्यूरॉन्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया ऑलरेडी. न्यूरॉन्स का टाइप बेसिकली डिपेंड करता है ऑन द नंबर ऑफ एक्सोन एंड डेंड्राइट्स. न्यूरॉन का टाइप multipolar, bipolar and unipolar. Multipolar means one axon and two or more dendrites. Bipolar means one axon and one dendrite. तभी बाई शब्द लगा हुआ है. टर्मिनोलॉजी पे कमांड बनाना है हम लोगों को. बायोलॉजी ऑलमोस्ट आपका कवर हो जाएगा. एंड यूनिपोलर मीन्स यूनी सिंगल, only one axon available, and such type of neuron is only found in the embryonic stage. Now, axons are categorized on the basis of availability of myelin sheath also. So, if axon is myelinated or it is non-myelinated. ठीक है, myelinated axons are having Schwann cells and these Schwann cells are responsible for the formation of the myelin sheath, and in between the myelin sheath, look carefully over here, myelin sheath is written at two places. उसके बीच में nodes of Ranvier it is written, which means node of Ranvier is present in between the gap of the myelin sheath. This is the meaning. That is why I have written it in this manner. Okay, and such myelinated axons are found in spinal and the cranial nerves. Spinal nerves सबको clear है. Cranial nerves, actually cranial शब्द meaning the cranium is protecting your brain. So the nerves which are arising from the cranium, they are known as cranial nerves. Now non-myelinated axons are present in, all of you look here carefully, autonomic and somatic neural system. इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया ऊपर. एंड नॉन मैलिनेटेड एक्सोन्स में जो शॉन सेल्स प्रेजेंट हैं, दे नेवर फॉर्म माइलिन शीथ. Okay students, so after studying about the types of axon, you can look here carefully. यहाँ myelinated and non-myelinated axons के बीच में एक क्लियर डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है. आप लोग इसको लेटर ऑन आराम से पढ़ सकते हैं. आई ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड. नाउ फंक्शंस ऑफ न्यूरल सिस्टम अगर हम देखें तो न्यूरल सिस्टम के फंक्शंस क्या हैं? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, बॉडी में मेंटेन रखना. मेमोरी, बिकॉज हमारा हर एक चीज़ से मेमोरी है एसोसिएटेड. फाइन, फॉर एग्जांपल हमें कभी करंट लगता है तो वी फर्स्ट टाइम लगने के टाइम पे वी आर एबल टू नो दैट वी आर एक्सपीरियंसिंग इलेक्ट्रिक करंट. नेक्स्ट टाइम व्हेन यू आर हैविंग द सेम एक्सपीरियंस, you will come to know from the memory created from the past experience. This is also a function of the neural system. And the third one is homeostasis, ionic balance of the ions as well as maintaining body temperature. And this question is very important. Impulse conduction depends upon what parameters? Number 1, permeability of exolemma. What is exolemma? एक्सोन का मेम्ब्रेन. ये एक्सोन का मेम्ब्रेन है, ठीक है. इसका परमिबिलिटी अगर अच्छा नहीं होगा तो हाउ सोडियम एंड पोटेशियम आयंस विल कंटिन्यूअसली गो इन एंड आउट.
तो इम्पल्स का कंडक्शन, सिग्नल का कंडक्शन डिपेंड्स अपॉन द परमिबिलिटी ऑफ द एक्सोलेमा. द सेकेंड थिंग, osmotic equilibrium between the exoplasm and the extracellular fluid. If the osmotic equilibrium is disturbed, again the ionic movement is affected, which will finally affect the movement of the impulse. Another important question, neural tissue का property. Neural tissues are having two very important properties of excitability and conductivity. Excitability means to generate electric impulse in response to stimulus. Excite हो जाएगा, excitable हो जाएगा, excited हो सकता है. Conductivity, conduct करेगा, transfer करेगा एक जगह से दूसरी जगह. Conduction, to transmit electrical impulse from one origin to a particular direction, either from the receptor to the CNS or from the CNS to the effector. Then, after this, we have to study about synapse. What is synapse? We know the gap between two neurons. Pre-synaptic neuron और post-synaptic neuron के बीच का gap, that is synapse. Synapse will receive two different types of impulses. Electrical impulse या chemical impulse. अगर electrical impulse receive करेगा तो membrane of pre and post-synaptic knob are very close in that case. अगर पहले वाले न्यूरॉन और बाद वाले न्यूरॉन का मेम्ब्रेन क्लोज है तो क्विकली ट्रांसफर हो सकता है इम्पल्स. मिनिमम डिले इन ट्रांसमिशन. एग्जाम्पल, कार्डियक मसल फाइबर्स आर कंसिस्टिंग सच सिनेप्सिस एंड स्मूथ मसल्स फाइबर्स ऑफ इंटेस्टाइन एंड epithelial cells of eyelids. This is the example. Then chemical impulses के केस में it will take some time in comparison to the electrical impulse. Why? You can understand in the explanation. Movement of pre and post synaptic neuron separated by a fluid filled space called synaptic cleft. ये synaptic cleft मौजूद है in between the membrane of the पहले वाला and बाद वाला न्यूरॉन. इम्पल्स आता है प्री सिनेप्टिक नॉब तक, कैल्शियम आयंस को सीक्रेट करता है फ्रॉम द साइटोप्लाज्म ऑफ द प्री सिनेप्टिक नॉब. यहाँ से पहले वाले न्यूरॉन से कैल्शियम आयंस सीक्रेट होंगे. ये कैल्शियम आयंस मूव करेंगे, सिनेप्टिक वेसिकल्स तक जाएंगे, एकदम यहाँ के एंड पोर्शन तक आएंगे एंड फाइनली इस वजह से न्यूरोट्रांसमीटर का डिस्चार्ज होगा. यहाँ सिनेप्स में न्यूरोट्रांसमीटर आएगा. ये न्यूरोट्रांसमीटर जाके अगले वाले मेम्ब्रेन के डेंड्राइट्स को हिट करेगा. इन दैट केस उसका पोटेंशियल में चेंज आएगा. तो दिस प्रोसेस इज क्वाइट टाइम टेकिंग इन कंपैरिजन विद द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स. ओके, नाउ आफ्टर स्टडीइंग अबाउट द सिनेप्स, दिस इज द कंप्लीट पोर्शन अबाउट द सिनेप्स. और सिनेप्स में कितने टाइप का इम्पल्स आता है, इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल. स्टूडेंट्स कैन टेक ए स्क्रीनशॉट एज वेल. तो ये नोट्स आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा. अब हम लोग बात करते हैं ब्रेन की. ब्रेन इज प्रेजेंट इनसाइड ए बोनी कैविटी कॉल्ड क्रेनियम. हमने अभी पढ़ा जो ब्रेन के प्रोटेक्टिव कवरिंग्स हैं, दे आर ड्यूरामेटर, आर्कनॉइड मैटर एंड द पाया मैटर, आउटर, मिडिल, इनर रेस्पेक्टिवली. ठीक है, तो द एक्टिविटीज कंट्रोल्ड बाय ब्रेन आर एज फॉलोज: वॉलंटरी मूवमेंट्स, बॉडी बैलेंस, functioning of involuntary organs like eye and heart, thermoregulation, therm means temperature, temperature का regulation, control of hunger and thirst, circadian rhythm, circadian rhythm is biological cycle, biological cycle हमारे सोने, जगने, उठने का ये सारा जो टाइम टेबल है ना, ये circadian rhythm. Control activity of endocrine glands and human behavior as well. ह्यूमन बिहेवियर को कैसे कंट्रोल करेगा, बिकॉज हम लोग सेम इम्पल्स के लिए अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं, अलग अलग तरीके के एनवायरनमेंटल फैक्टर्स में. ये सारी चीज़ें इज कंट्रोल्ड बाय ब्रेन. प्रोसेसिंग ऑफ विजन, हियरिंग, स्पीड, मेमोरी, इंटेलिजेंस, इमोशंस, थॉट्स, एवरीथिंग कंट्रोल्ड बाय ब्रेन. अब व्हेन वी स्टडी अबाउट ब्रेन, हमने बहुत छोटे से पढ़ते हुए आ रहे हैं 10th स्टैंडर्ड ऑनवर्ड्स, 3 पार्ट्स, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, easy. Now we need to go in quite deep. Forebrain consists olfactory lobes,
cerebrum and diencephalon. Midbrain consists cerebral aqueduct along with the corpora quadrigemina. मतलब the cerebral aqueduct is a canal which passes through the midbrain and the corpora quadrigemina is the dorsal portion of the midbrain. All of you please remember this. The hindbrain. Hindbrain consists pons which is responsible for regulating the mechanism of the respiration. Cerebellum, the second largest part of the brain. The first one is cerebrum and medulla oblongata. Now, up we are going to study all these parts in detail, starting from the forebrain. Forebrain, you all look carefully. This is the portion of the forebrain. Okay, this much. ऑनलाइन क्लास वाले स्टूडेंट्स नोट्स अगर प्रिपेयर करना चाहें दे कैन टेक अ स्क्रीनशॉट. फोरब्रेन इज डिवाइडेड इनटू olfactory lobe. Sorry, it consists olfactory lobe. It consists cerebrum. जो olfactory lobe है that is club shaped. Club is हिंदी में चिड़ी बोलते हैं हम लोग when we are playing cards. तो olfactory lobe is having the memory of the smell. आँख बंद करके हमारा फ्रेंड पिज़्ज़ा सामने रखेगा, वी आर एबल टू नो कि हाँ दिस इज द स्मेल ऑफ द पिज़्ज़ा. तो मेमोरी ऑफ द स्मेल, स्मेल से रिलेटेड सारा चीज परफॉर्म्ड बाय द ओल्फैक्टरी लोब. सेरिब्रम. Cerebrum is the largest part of the forebrain and in a rough manner I have drawn this cerebrum. How? Cerebrum अगर इस तरीके से मैंने ड्रॉ किया तो आप लोग ध्यान से देखिएगा. इट इज डिवाइडेड, एक बीच से एक पार्टीशनिंग लाइन है. इस पार्टीशनिंग लाइन को नाम दिया गया कॉर्पस कैलोजम. दिस कॉर्पस कैलोजम इज बिल्ड बाय माइलिनेटेड सेल्स और इट इज डिवाइडेड इनटू टू lobes. राइट साइड वाला इज नोन एज राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर एंड लेफ्ट वन इज लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर. ओके, सो देन the middle membrane which is dividing the right and the left cerebral hemisphere is known as corpus callosum, we studied. And the outer covering is cerebral cortex or the gray matter. Gray matter के ठीक नीचे white matter is present which is composed of myelinated nerve fibers. This is gray matter, जो अंदर से जिसको येलो कलर का दिखाया है, this is gray matter. And just below the gray matter we can draw white matter is present. यहाँ this portion, this is white matter. Okay, now the grayish appearance of the cerebral cortex is in abundance because it consists the neurons का सेल बॉडी वाला पोर्शन. जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है, ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स में ढेर सारे डीप फोल्ड्स होते हैं. सेरिब्रम का आप डायग्राम देखेंगे तो यू विल कम टू नो इट इज हैविंग द ढेर सारा डीप फोल्ड्स. वॉलनट के जैसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा आपको. तो वो जो डीप फोल्ड्स हैं, अपवर्ड फोल्ड इज नोन एज गायरी एंड द डाउनवर्ड फोल्ड इज नोन एज सल्सी. दिस इज ऑल अबाउट द सेरिब्रम इन योर सिलेबस. इतना ही आपको अच्छे से पढ़ लेना है. इसके बाद व्हेन वी टॉक अबाउट द लोब्स ऑफ द सेरिब्रम, सेरिब्रम के दो अलग अलग लोब्स हैं. ईच सेरिब्रल हेमिस्फीयर इज कंसिस्टिंग 4 लोब्स, फ्रंटल, पेराइटल, ओसिपिटल एंड टेम्पोरल. Then the functional areas of each cerebral hemisphere are sensory, motor and association. The sensory area receive impulse, motor area transmit करेगा same impulse, same signal को, and association area transmit करने से पहले, receive करने के बाद interpret करेगा. पहले interpret करेगा, store करेगा उसको, इनिशिएट करेगा रेस्पॉन्स इन द लाइट ऑफ द एक्सपीरियंस. इफ यू आर हैविंग वैसे ही इम्पल्स का कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस, तो इन द सेम केस नाउ यू विल एक्ट इन अ बेटर मैनर. अब जब हम हर एक सेरिब्रल हेमिस्फीयर को स्टडी कर रहे हैं तो उसके ईच सेरिब्रल हेमिस्फीयर इज कंसिस्टिंग एमाइगडाला एंड हिपोकैम्पस.
which is a complex structure which forms limbic lobe. The function of the limbic lobe, जिसमें amygdala और hippocampus मौजूद है, the function of the limbic lobe is to regulate the emotional reactions, sexual behavior. Sexual behavior different होता है in boys and girls, है ना, on at the time of same situation, that is sexual behavior, excitement, pleasure, rage, fear, motivation, इन सब के लिए limbic lobe is responsible. Next, number 3, the third important portion हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा फोरब्रेन में olfactory lobe, cerebrum and diencephalon. olfactory lobe and cerebrum हमने पढ़ लिया. Now we will come to diencephalon. Diencephalon में एपिथैलेमस एंड थैलेमस कंसिस्ट करते हैं नॉन नर्वस टिश्यूज को और सेरिब्रम से रैप्ड अराउंड थैलेमस को. कैसे? जो थैलेमस है, ये थैलेमस के बेस में हाइपोथैलेमस प्रेजेंट है. हाइपोथैलेमस प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द थैलेमस एंड दिस हाइपोथैलेमस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द बॉडी टेम्परेचर एंड अर्ज ऑफ ईटिंग एंड ड्रिंकिंग. ईटिंग एंड ड्रिंकिंग का जो अर्ज है, कम खाना है ज़्यादा खाना है, दैट अर्ज. एंड हाइपोथैलेमस कंसिस्ट करता है न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स विच रिलीज हाइपोथैलेमिक हार्मोन. नाउ द लास्ट पोर्शन ऑफ द ब्रेन इज हिंडब्रेन. हिंडब्रेन कंसिस्ट पोन्स, सेरिबेलम एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा. पोन्स इंटरकनेक्ट करता है डिफरेंट रीजन्स ऑफ ब्रेन. सेरिबेलम सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन. Convoluted surface, convoluted means complex, provide space to many neurons. जो medulla oblongata है, ये कनेक्ट करता है विद द स्पाइनल कॉर्ड एंड कंट्रोल करता है कार्डियोवास्कुलर रिफ्लेक्सेस, गैस्ट्रिक सीक्रीशंस, रेस्पिरेटरी रिदम, वर्टिगो. वर्टिगो मीन्स आपका जेस्चर एंड पोस्चर. ब्रेन पोर्शन कंप्लीट करने के बाद we can say midbrain along with pons and medulla oblongata results in the formation of brain stem. ये जो ब्रेन स्टेम है, ये ब्रेन स्टेम कनेक्ट करती है स्पाइनल कॉर्ड को और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बीच में कनेक्शन डेवलप करने के लिए ब्रेन स्टेम रिस्पॉन्सिबल है. अब स्पाइनल कॉर्ड इज द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम. हम लोगों ने ब्रेन पूरा पढ़ लिया, सो स्पाइनल कॉर्ड इज द नेक्स्ट पोर्शन. स्पाइनल कॉर्ड पोस्टीरियर पार्ट है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, 42 to 45 सेंटीमीटर लॉन्ग है. फॉर्मेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं ग्रे एंड वाइट मैटर. हम जानते हैं ये क्या है. इंपल्स कंडक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल है फ्रॉम एंड टू द ब्रेन. जो स्पाइनल नर्व ट्रैक्ट है, ये एसेंडिंग है और डिसेंडिंग है. जो एसेंडिंग है वो सेंसरी इंपल्स, वहां पे सेंसरी इंपल्स जाता है टुवर्ड्स ब्रेन. डिसेंडिंग यानी ऊपर से नीचे आएगा मोटर इंपल्स फ्रॉम ब्रेन. ये इसको कंसिस्ट करता है. स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करता है रिफ्लेक्स एक्शंस, क्योंकि रिफ्लेक्स एक्शन जो है ये क्विकली प्रोवाइड करना होता है बॉडी को इन रेस्पॉन्स टू एनी आउटर स्टिमुलस. इसलिए स्पाइनल कॉर्ड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द रिफ्लेक्स एक्शन. और रिफ्लेक्स एक्शन को थॉटलेस एक्शन इसीलिए कहा जाता है बिकॉज ब्रेन इज नॉट इन्वॉल्व्ड. स्पाइनल कॉर्ड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग दीज एक्शंस. नाउ वी हैव फिनिश्ड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पूरा पोर्शन. सो नाउ वी बिगिन विद द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. पेरिफेरल नर्वस सिस्टम सोमैटिक एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में डिवाइडेड है. वी विल स्टार्ट विद द सोमैटिक पोर्शन. सोमैटिक नर्वस सिस्टम कैरी करता है इंपल्स को फ्रॉम सीएनएस टू द स्केलेटल मसल्स एंड सब डिवाइडेड इनटू क्रेनियल नर्व्स. इसमें ढेर सारे क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स मौजूद हैं. इनके कितने पेयर कहाँ मौजूद हैं, किस पार्ट में, यू गाइस नीड टू रिमेंबर. जो क्रेनियल नर्व्स हैं दे आर टोटल इन 12 पेयर, अराइज फ्रॉम फोरब्रेन एंड अब इसमें ब्रेन स्टेम भी इन्वॉल्व है. जो स्पाइनल नर्व्स हैं दे आर हैविंग टोटल 31 पेयर स्पाइनल नर्व्स फ्रॉम द टॉप, स्टार्टिंग फ्रॉम द टॉप पार्ट, फ्रॉम द ब्रेन स्टेम वाले जगह से सर्वाइकल एरिया इज फ्रॉम योर नेक टू द शोल्डर, बैक साइड आप देख सकते हैं. और सर्वाइकल एरिया इज हैविंग 8 पेयर.
थोरेसिक ये होता है जहाँ पर हमारे लंग्स मौजूद हैं, दैट इज थोरेसिक एरिया। थोरेसिक एरिया में 12 पेयर्स, उसके ठीक नीचे लुम्बार 5 पेयर, देन सेक्रल 5 पेयर एंड लास्ट कॉसिजियल 1 पेयर। देन आफ्टर दिस peripheral nervous system is completed and we begin with the next topic, eye. Eye के केस में impulse is always forwarded with the help of the optic nerve to the central nervous system, present in pair, deeply present inside a bony cavity जिसको eye socket या orbit भी कहते हैं. It is in 3 parts, the outermost, middle and the innermost. Innermost रेटिना मौजूद है, आउटर मोस्ट फिब्रस जो टिश्यूज हैं दे आर कंसिस्टिंग स्क्लेरा एंड कॉर्निया एंड द मिडिल लेयर इज कंसिस्टिंग कोरॉइड, सीलरी बॉडी एंड आइरिस। जो आउटर मोस्ट लेयर है, अब इन सबको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे जिसका हम लोगों ने ऊपर नाम पढ़ा है। जो आउटर मोस्ट लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर में सबसे पहले बात करते हैं स्क्लेरा की, स्क्लेरा एंड कॉर्निया। स्क्लेरा क्या है? आईबॉल स्ट्रक्चर को मेंटेन रखता है, एक ओपेक लेयर है कनेक्टिव टिश्यूज का, ढेर सारे कनेक्टिव टिश्यूज को कंसिस्ट करता है और ये जो स्क्लेरा है ये प्रोटेक्ट करता है इनर लेयर ऑफ आईबॉल। अब जब हम बात करेंगे कॉर्निया की, तो कॉर्निया एक बहुत थिन ट्रांसपेरेंट पोर्शन है और स्क्लेरा के फ्रंट पे मौजूद रहता है। यहां कोई ब्लड वेसल नहीं है, ये रिच होता है नर्व एंडिंग्स में। ऑल ऑफ यू रिमेंबर। तो ये बात हो गई इसके आई के आउटर मोस्ट लेयर की। जब हम आई के मिडिल लेयर का बात करेंगे तो सब लोग याद रखेंगे इसके मिडिल लेयर में हमें क्या पढ़ना है, उतनी चीजों को मैंने हाईलाइट किया हुआ है। कोरॉइड, आईबॉल, इरिस एंड प्यूपिल। कोरॉइड की बात करेंगे तो ये एक थिक एंटीरियर पार्ट है जो फॉर्म करता है सीलरी बॉडी। कोरॉइड में जो आईबॉल है, कोरॉइड जो हेल्प करता है आईबॉल से अटैचमेंट में, ये इसका 2/3 पोर्शन आईबॉल के साथ एसोसिएटेड है आईबॉल के पोस्टीरियर पार्ट पे। कोरॉइड पिगमेंटेड लेयर है ब्लूइश जो कि प्रेजेंट है जस्ट बिलो स्क्लेरा और यहाँ ढेर सारे ब्लड वेसल्स मौजूद हैं टू नरिश रेटिना। नंबर 2, आईबॉल का जब बात करेंगे तो आईबॉल कंसिस्ट करता है लेंस। ये जो लेंस है इसका फोकल लेंथ चेंज होता है विद द हेल्प ऑफ सीलरी मसल्स। सीलरी मसल्स इसके फोकल लेंथ को एडजस्ट करने में हेल्प करते हैं ताकि हम अलग अलग ऑब्जेक्ट्स पे, डिस्टेंट और नियर बाय ऑब्जेक्ट्स पे फोकस कर सकें इजीली। नंबर 3, आइरिस। ये एक पिगमेंटेड सर्कल टाइप है जो प्रोवाइड करता है कलर टू द आई, मस्कुलर होता है। ये जो मसल फाइबर्स हैं, इन मसल फाइबर्स के मूवमेंट में भी हेल्प करता है और ये कंट्रोल करता है डायमीटर ऑफ प्यूपिल। ये जो प्यूपिल है ये छोटा सा होल है और ये डायलेट हो जाता है, एक्सपेंड हो जाता है व्हेन लाइट इज लेस, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है जब हम बहुत ज़्यादा लाइट वाले एरिया में जाएंगे, इसलिए हम आँख बंद कर लेते हैं जब बहुत ज़्यादा लाइट है। प्यूपिल एक अपर्चर है, छोटा सा होल टाइप यू कैन से, सराउंडेड बाय आइरिस। 2 टाइप के स्मूथ मसल्स यहाँ मौजूद हैं, सर्कुलर along with the रेडियल। इसका जो ओरिजिन है एक्टोडर्मल लेयर ऑफ द एम्ब्रियो से होता है। नाउ द लास्ट इनर लेयर ऑफ द आई। जो इनर लेयर है कंसिस्ट करेगा रेटिना, 3 लेयर ऑफ सेल्स मौजूद हैं वहाँ, गैंग्लियन, बाइपोलर, फोटो रिसेप्टर। फोटो मीन्स लाइट को रिसीव करने वाले, फोटो रिसेप्टर सेल को विजुअल सेल्स भी कहते हैं। ये ढेर सारे फोटो पिगमेंट्स मतलब लाइट के पिगमेंट्स को कंसिस्ट करता है। ये जो फोटो रिसेप्टर सेल्स हैं या विजुअल सेल्स हैं ये 2 टाइप के हैं, रॉड्स एंड कोन्स। जो रॉड्स हैं दे आर ट्विलाइट स्कोटोपिक विजन प्रोवाइड करते हैं और इसका ठीक उल्टा जो कोन्स हैं दे आर फॉर डे लाइट फोटोपिक विजन प्रोवाइड करते हैं, यानी कि कलर विजन, और कलर विजन में भी हेल्प करते हैं। फोटोपिक तो प्रोवाइड करेंगे ही डे लाइट का और कलर का विजन भी प्रोवाइड करते हैं। यहां से आप लोगों को यह भी आइडिया लग गया होगा कि जो लोग कलर ब्लाइंड हैं
they are having problem with the rod and cones. Now जो रॉड सेल्स हैं यहाँ पर पर्पलिश रेड प्रोटीन रोडोप्सिन मौजूद है जो कि एक डेरिवेटिव है विटामिन ए का, और ये जो कलर विजन के लिए जो कोन सेल्स मौजूद है दे आर बेसिकली ऑफ 3 टाइप्स, रेड, ग्रीन, ब्लू। इन 3 के पिगमेंट्स यहाँ मौजूद हैं। तो इन 3 के डिफरेंशिएशन में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो जो कलर ब्लाइंड है तो उस केस में कोन सेल्स आर रेस्पॉन्सिबल, एंड इन केस किसी को फर्दर कोई इशू है जैसे रिलेटेड विद द डिटेक्शन ऑफ द लाइट, तब वहां पर रॉड सेल्स रेस्पॉन्सिबल होते हैं। इसके बाद वी विल स्टडी अबाउट ऑप्टिक नर्व, क्योंकि जो ऑप्टिक नर्व है ये ऑप्टिक नर्व ही लेकर जाएगा सिग्नल को फ्रॉम द इम्पल्स को फ्रॉम द आई टू द ब्रेन, ताकि इंटरप्रेट कर सकें व्हाट द थिंग इज। ऑप्टिक नर्व आई से लीव द आई एंड कनेक्टेड विद द ब्रेन। यहाँ रेटिनल ब्लड वेसल्स मौजूद हैं। रेटिनल ब्लड वेसल्स एक पर्टिकुलर जंक्शन पे विच इज नोन एज ब्लाइंड स्पॉट, जहां पर कोई फोटो रिसेप्टर सेल्स नहीं है, ना रॉड है ना कोन है, और ये वो पॉइंट है, वो जंक्शन है जहां से ऑप्टिक नर्व निकल रही है फ्रॉम द आई और जा रही है ब्रेन के लिए। दैट पर्टिकुलर पॉइंट इज नोन एज ब्लाइंड स्पॉट। तो ब्लाइंड स्पॉट पर अगर लाइट जाएगा तो यू आर नॉट एबल टू सी एनीथिंग। ठीक, आफ्टर स्टडिंग अबाउट द ऑप्टिक नर्व, अब हमें समझना है मैक्युला लुटिया एंड फोविया सेंट्रलिस। ये दोनों ही चीज़ें एनसीईआरटी में गिवन है एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो मैक्युला लुटिया है इसको एक्चुअली येलो स्पॉट भी कहते हैं बिकॉज इट इज़ येलोइश इन कलर एंड इट इज़ प्रेजेंट ऑन द लेटरल साइड ऑफ द ब्लाइंड स्पॉट। इसके मैक्युला लुटिया के एकदम मिडिल पोर्शन में देयर इज ए शैलो डिप्रेशन पिट टाइप, तो दैट डिप्रेशन इज प्रेजेंट इन द सेंट्रल, सो इट इज नोन एज फोविया सेंट्रलिस। इसको हम सिर्फ फोविया भी कह सकते हैं। ओके, देन दिस फोविया इज द थिनर पोर्शन ऑफ रेटिना जो ओनली कंसिस्ट करेगा कोन सेल्स, और सिर्फ कोन सेल्स को कंसिस्ट करने की वजह से यहाँ से जो विजन है दैट इज वेरी शार्प। नाउ द रिमेनिंग कंटेंट्स ऑफ द, नाउ वी विल स्टडी अबाउट द रिमेनिंग कंटेंट्स ऑफ द आई जो हैं एक्वस ह्यूमर एंड विट्रस ह्यूमर। जो एक्वस ह्यूमर है ये एक्वस फ्लूइड ये प्रेजेंट है इन द एक्वस चैम्बर जो लेंस और कॉर्निया के बीच में है, और जो विट्रस ह्यूमर है विट्रस फ्लूइड ये विट्रस चैम्बर में है लेंस और रेटिना के बीच में। नाउ वी विल मूव टू द मैकेनिज्म ऑफ विजन। जो मैकेनिज्म है विजन का इन ह्यूमंस, जो ह्यूमन आई है उसका विजन बाइनोक्यूलर है। बाइनोक्यूलर मतलब वी कैन फोकस फ्रॉम द बोथ आईज ओवर अ कॉमन ऑब्जेक्ट। ओके, नाउ द टिपिकल mechanism of vision is explained with the help of this flowchart। एक स्टोरी के फॉर्म में, ऑल ऑफ यू लिसन केयरफुली। लाइट की जो विजिबल वेवलेंथ है उस विजिबल वेवलेंथ को, वो विजिबल वेवलेंथ का लाइट कॉर्निया से होता हुआ लेंस एंड देन ओवर रेटिना फॉल करता है। इस वजह से जनरेट होता है सिग्नल इम्पल्स। दिस सिग्नल इज रिसीव्ड बाय द फोटोरिसेप्टर रॉड एंड कोन सेल्स। इनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। और जैसे ही रॉड एंड कोन्स एक सिग्नल को रिसीव करते हैं रेटिना से, वैसे ही यहाँ मौजूद रेटिनॉल डिसोसिएट हो जाता है ऑप्सिन से। ऑप्सिन प्रोटीन के बारे में पढ़ चुके हैं हम लोग। जो ऑप्सिन है अब इसमें स्ट्रक्चरल चेंजेस आने शुरू होते हैं। इन स्ट्रक्चरल चेंजेस की वजह से जो रेटिनल मेम्ब्रेन है इसका परमिएबिलिटी बदल जाता है, परमिएबिलिटी चेंज हो जाता है, एंड बिकॉज ऑफ दिस परमिएबिलिटी चेंज जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा फोटो रिसेप्टर सेल्स में। नाउ जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हुआ
फोटो रिसेप्टर सेल्स में ये फोटो रिसेप्टर सेल्स अब एक नया इम्पल्स, एक नया सिग्नल जनरेट करेंगे। ये सिग्नल जाएगा बाइपोलर सेल्स तक। बाइपोलर सेल्स इस सिग्नल को इंटरप्रेट करके एक नया सिग्नल जनरेट करके भेजते हैं गैंग्लियन सेल्स तक, और गैंग्लियन सेल्स इसको ट्रांसमिट करते हैं ऑप्टिक नर्व तक। ऑप्टिक नर्व हम जानते हैं कैरी दैट सिग्नल टू द ब्रेन, ब्रेन के विजुअल कॉर्टेक्स, जहाँ पर नर्व इस न्यूरल इम्पल्स को एनालाइज किया जाएगा, समझा जाएगा पुराने पास्ट एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे, ताकि हम रिकॉग्नाइज कर सकें उस इमेज को। और रिकॉग्नाइज करने के बाद ऑन द बेसिस ऑफ मेमोरी एंड एक्सपीरियंस वी आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट द ऑब्जेक्ट इज। दिस इज द mechanism of vision. After that, there are some common diseases related with the eye. They are cataract, myopia, hypermetropia and presbyopia. Number 1, cataract. हिंदी में हम लोग इसको मोतियाबिंद भी बोलते हैं। कैटरैक्ट जनरली ओल्डर पीपल में देखा जाता है अबव 60। इस केस में लेंस ओपेक हो जाएगा, रिजल्टेड इन ब्लाइंडनेस, और इसको करेक्ट करने के लिए एक सूटेबल ग्लास का रिक्वायरमेंट है, या डिफेक्टिव लेंस को लोग सर्जिकली ऑपरेट भी करवा सकते हैं, रिप्लेस करवा सकते हैं। नंबर 2, मायोपिया। मायोपिया को नियर साइटेडनेस या शॉर्ट साइटेडनेस भी कहते हैं। इस कंडीशन में आईबॉल थोड़ा सा लॉन्ग हो जाता है और जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स हैं वो दिखाई नहीं देते। डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स क्लियरली समझ में नहीं आते, डिफरेंशिएट करना मुश्किल है व्हाट द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इज। इसको करेक्ट करने के लिए कॉन्केव लेंस का रिक्वायरमेंट है। आफ्टर दैट नंबर 3, हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया इज जस्ट अपोजिट टू द मायोपिया। इसको फार साइटेडनेस या लॉन्ग साइटेडनेस भी कहते हैं, और इसमें जो नियर ऑब्जेक्ट्स हैं वो ब्लर हो जाते हैं। नियर ऑब्जेक्ट्स ब्लर होने के पीछे जो वजह है वो ये कि इमेज का फॉर्मेशन हो जाता है बियॉन्ड रेटिना, रेटिना से आगे। तो ऐसे कंडीशन में हमें एक ऐसा लेंस चाहिए जो कन्वर्ज कर दे लाइट रेस को थोड़ा पहले ही ओवर द रेटिना। ठीक है, तो ऐसे केस में जो लाइट रेस को कन्वर्ज करे, वी आर एबल टू अंडरस्टैंड वी आर टॉकिंग अबाउट कॉन्वेक्स लेंस। ऐसे केस में जो लेंस है वो शॉर्ट और फ्लैट यूज किया जाएगा, और इसको करेक्ट करने के लिए हम लोग पढ़ चुके हैं कॉन्वेक्स या कॉन्वर्जेंट लेंस कैन इजिली करेक्ट द हाइपरमेट्रोपिया। नंबर 4, प्रेसबायोपिया। प्रेसबायोपिया इज जनरली आफ्टर 40 years. इसका रीजन लॉस ऑफ इलास्टिसिटी इन आई लेंस, नियर ऑब्जेक्ट्स आर नॉट क्लियरली विजिबल। इसको करेक्ट करने के लिए या तो कॉन्वेक्स या बाइफोकल लेंसेस आर यूज्ड।